Welcome students. You can see on screen today I am going to discuss benzene mechanism. This is very good mechanism, and if you talk about the competitive examination point of view, then I will say definitely this is going to be a very important reaction mechanism. Normally aromatic compounds give electrophilic aromatic substitution reactions, but if benzene ring is having a substitution and that substituted group, the group which is attached to the benzene ring, is electron withdrawing in nature, in that particular case there is a possibility of nucleophilic aromatic substitution reaction. Now when you talk about the nucleophilic aromatic substitution reactions, these reactions can be observed with different kind of mechanism. One kind of mechanism I have specifically discussed with you, and that mechanism is nothing but SN2AR reaction mechanism. In my last video, I have discussed the SN2AR reaction mechanism in detail. So I think you know each and every aspect of that particular mechanism. Today I am going to discuss the benzene mechanism, and let us try to understand what actually this mechanism is and in which particular conditions this mechanism will operate. In my last video, I told you that if there is an aryl halide, when I say aryl halide, this is something like this. It means that if your substrate is aryl halide, so let us start. So if I say this is your substrate, you are having benzene, and in benzene there is a substitution of hydrogen, and this substitution is from halogen atom. So bromine is there. So you can say this compound is bromobenzene. So that is your substrate. That is your substrate where you can say some substitution will occur. Substrate. So here this bromine can be substituted by any other nucleophile. So let us try to understand how this reaction will uh, take place and how this benzene will be formed in this particular reaction. Now in my last video I told you that if this particular compound has substitution at ortho or para position with a group which is electron withdrawing in nature. If I put any group on ortho or para position and that group is electron withdrawing in nature, in that particular case the reaction mechanism should be SN2AR. But if there is no such group and only bromine is attached to the benzene ring, in that particular case the reaction mechanism will be benzene mechanism. Now there are other possibilities also. I am not saying that other mechanisms are not possible in this particular case, but benzene mechanism is definitely a specific mechanism which will be observed in this particular substrate, in case of this particular substrate. So let us try to understand how this reaction will undergo. Now what is the reagent? What reagents are we using in this particular reaction? Now बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि आपका जो बेस है या जो न्यूक्लियोफाइल है, बेस और न्यूक्लियोफाइल, दैट शुड बी strong in nature. So you should have a strong base. When I'm saying strong, this is a strong base. So we are using NaNH2 in this case, or you can have any other strong base, like you might be having something like RONA. So in this case also this is a strong base. So if you are having a strong base, then benzene mechanism will be observed. Now here in this case I am using NaNH2. What I am using? I am using NaNH2 in liquid ammonia. NaNH2 in liquid ammonia. Now what will happen? If you see, this is your aromatic substrate. So let us start from the zero, and okay, let me start with the substrate bromobenzene. So this is your bromobenzene, that is your bromine, and bromine के ये वाला कार्बन, इसके अल्फा पोजीशन पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा. सॉरी, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दैट इज योर बीटा कार्बन. सो बीटा कार्बन पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा. दिस इज बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर होगा क्या, ये आपका NH2 बेस है which is a strong base. This will attack on this proton, this bond will break and electron will go to this carbon. So in the first step what will happen? In first step you are going to get a lone pair on this carbon and rest bonds are intact. Bromine is still there.
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा साहब, नेक्स्ट स्टेप में ये जो लॉन पेयर है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएगी और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर ब्रोमीन बाहर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ब्रोमीन बाहर आ गया, ब्रोमीन रिमूव हो गया और ये लॉन पेयर ने एक बॉन्ड फॉर्म किया। सो लॉन पेयर ने जो बॉन्ड फॉर्म किया वो बॉन्ड कहाँ बनेगा, जहाँ पर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाली 6 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है इसी को आप बोलते हैं बेंजाइन। This is an intermediate which is highly unstable in nature. So this is highly unstable intermediate which is observed in this particular mechanism, and hence the name of this reaction mechanism is Benzyne mechanism. So that is the generation of benzyne. Now once this benzyne is generated, now definite thing is ये जो बेंजाइन है क्योंकि हाईली अनस्टेबल है तो जल्दी से रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, देखते हैं साहब किसके साथ रिएक्ट करेगा। आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें बेस तो अभी भी पड़ा है और वो बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कौन सा बेस है सर, दैट बेस इज नथिंग बट NH2 माइनस। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है NH2 माइनस। सो देयर आर टू लॉन पेयर्स और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इस कार्बन को वापस अटैक कर सकता है, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा और लॉन पेयर आपको यहाँ पर कार्बन के पास दिखाई देगा। तो फिर से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, NH2 यहाँ पर आकर अटैच्ड हो गया और यहाँ पर एक लॉन पेयर आपको दिखाई देगा। अब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो ऑब्वियसली एक प्रोटॉन को ले सकती है, लिक्विड अमोनिया हमारे पास है ही, ये लॉन पेयर इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर ले और यहाँ पर NH3 लिख दिया है मैंने, अमोनिया है ना हमारे पास, तो अमोनिया से एक प्रोटॉन निकालना है हमें। सो दैट इज योर एक प्रोटॉन आप देख रहे हैं H, तो बाकी बचा NH2, तो ये NH2 मेरा बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस NH2 कर लेंगे अब। सो NH2 माइनस बाहर आ जाएगा और आपके पास ये प्रोटॉन चला गया बेंजीन रिंग के पास। तो वापस से आपको बेंजीन रिंग वैसे ही मिल गई, इंटरनल बॉन्ड वैसे ही है, यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है। हुआ क्या है, ब्रोमीन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया है, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। सो ओवरऑल जो ये रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म है जिसको आप अगर आप देखें तो ऐसे देयर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स इन विच दिस रिएक्शन इज अकरिंग। पहले स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल होता है, सेकंड स्टेप में हैलोजन बाहर चला जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस अटैक करके अटैच कर लेता है और फोर्थ स्टेप में प्रोटॉन यहाँ पर वापस बेंजीन रिंग को के साथ अटैच हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और जो मेरा हैलोजन एटम है वो NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में एक जगह पर हमने बेंजाइन बनाया था, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है और वही बेंजाइन इस रिएक्शन मैकेनिज्म के नेम को डिसाइड करता है, इसीलिए हम इसे बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। चलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें समझना है और सबसे जरूरी चीज़ है ये बेंजाइन क्या बना है, बेंजाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जरा इसको भी समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन, अगर आपसे पूछा जाए कि साहब स्ट्रक्चर क्या है बेंजाइन का तो आप क्या कहेंगे। अब इस पर थोड़ा सा डिबेट है। डिबेट क्या है साहब, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका बेंजाइन है वो बेंजाइन कुछ इस तरह का है, यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लूँ तो आई कैन से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सो इन दैट वे आप अगर देखें तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा और ट्रिपल बॉन्ड नज़र आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एल्काइन जैसी एक सिचुएशन बन गई है। कैसी सिचुएशन बन गई है, एल्काइन जैसी। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बन रहा होगा जरा ये भी देखते हैं। आप ऐसे अगर देखें तो जब ये बेंजीन रिंग थी तो ये कार्बन कैसे थे, ये जो 2 कार्बन थे इनको मैं नंबर कर रहा हूँ 1 और 2 जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड बना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 1 2 से शो कर दिया, राइट। तो यहाँ और देखिए ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा sp2। कार्बन अगर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, उसके स्पेसिफिक रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है और यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल है जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है हाइड्रोजन के साथ।
अब इस ऑर्बिटल से यहाँ पर इस ऑर्बिटल में हमने हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन लगा दिया था, तो ब्रोमीन बाहर चला गया कौन से ऑर्बिटल से, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज था। ऐसे यहाँ पर ये वाला ऑर्बिटल भी sp2 हाइब्रिडाइज था, तो ये दोनों ऑर्बिटल से ये बॉन्ड ब्रेक हुए। जब बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी कि ये आपकी बेंजीन रिंग थी, ये दोनों बॉन्ड इंटैक्ट रखे, तीसरा बॉन्ड भी इंटैक्ट रखा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ है और ये एक और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर है, राइट। अब अगर मैं कहता हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड बनना है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में ही बनेगा। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे होंगे, यानी कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं, जो कि यूजुअल केसेस में नहीं होता। जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो सारे ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज्ड हैं वो ऑर्बिटल्स नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बट अगर इस बेंजाइन की इस स्ट्रक्चर को सही स्ट्रक्चर माना जाए तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, जो कि बॉन्डिंग के रूल्स के अगेंस्ट है। सो ऑब्वियसली ये माना जाता है कि यहाँ पर जो बेंजाइन है उसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जो कि पाई बॉन्ड बनाते हैं, अगर बेंजाइन की स्ट्रक्चर सही है तो ऑब्वियसली हमने इसको बेंजाइन नेम ही दिया है, तो इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये स्ट्रक्चर सही है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, ये किस प्लेन में होंगे, ये बेंजीन रिंग के प्लेन में ही होंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है, प्लेनर रिंग है, और उसी प्लेनर रिंग में ये बॉन्ड बने होते हैं। ये जो CBr और CH बॉन्ड यहाँ दिखा रखा है मैंने, ये दोनों बॉन्ड बेंजीन रिंग के प्लेन में ही होंगे। इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के प्लेन में है और ये बॉन्ड भी बेंजीन रिंग के प्लेन में है। बट बाकी के जो ये 3 पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाई बॉन्ड प्योर p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनते हैं, और यहाँ पर जो p ऑर्बिटल होगा, जैसे मैं यहाँ पर अगर p ऑर्बिटल कहूँ तो वो p ऑर्बिटल इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर होगा, बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो अंदर वाले जो 3 पाई बॉन्ड हैं वो बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर प्योर p ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसका मतलब ये जो अंदर वाले बॉन्ड हैं वो बेंजीन रिंग के ऊपर एक लॉब बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, और बेंजीन रिंग के नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। लेकिन ये जो मेरे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया है वो बेंजीन रिंग के प्लेन में बनाया है। तो ये जो नया पाई बॉन्ड बना, ये पहले से जो 3 पाई बॉन्ड थे उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उनके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड की वजह से ये जो पाई बॉन्ड बना है, या यहाँ पर जो एडिशनल पाई बॉन्ड बना है वो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा बेंजाइन है, हमने ये स्ट्रक्चर लिखी थी बेंजाइन की, तो अब अगर ओवरऑल देखें तो कुल मिलाकर इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 4 पाई बॉन्ड बन गए। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसको अब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, बट दिस इज स्टिल एरोमेटिक। तो यहाँ इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे वो अभी भी इंटरनल बॉन्ड जो है रेजोनेट कर सकते हैं। इंटरनल बॉन्ड रेजोनेट करेंगे तो फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर मतलब ये दोनों ही स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं किसके, बेंजाइन के, ऐसा माना जाता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये आती है कि बेंजाइन जो है इस तरह की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना हो। यहाँ पर अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ अगर मैं मानता हूँ, मैंने आपको ऑर्बिटल दिखाए थे, अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर लेता हूँ, ओके, दिस इज योर वन ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज, अनदर ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड। अगर ये पाई बॉन्ड बनता है तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है और ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। बट अगर यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी कि एल्काइन जैसी सिचुएशन बनती है नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड की, तो इस बॉन्ड एंगल को क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इस पर्टिकुलर कार्बन को ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक बॉन्ड अलोंग दिस लाइन, एक बॉन्ड अलोंग दिस लाइन, इन दोनों बॉन्ड्स को जो 120 डिग्री के
120 डिग्री पर है, इन बॉन्ड्स को स्ट्रेट हो जाना चाहिए, तभी तो 180 का एंगल बनेगा। इसका मतलब अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसको स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बनना चाहिए, और उस केस में ये बेंजीन रिंग हाईली स्ट्रेन्ड होगी। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि ये बेंजाइन में नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। तो दिस इज नॉट ए नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड। पहली बात, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए बेंजाइन बने और बेंजाइन की ये स्ट्रक्चर हो, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। दूसरी बात, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएं, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, क्योंकि हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमेशा नॉर्मल केसेस में हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो पाई बॉन्ड नहीं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बट यहाँ पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि साहब बेंजाइन में क्या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, हाँ, अगर बेंजाइन की बात करें तो बेंजाइन अगर एग्जिस्ट करता है और बेंजाइन की ये स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली यहाँ पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बना रहे हैं, बट वो थ्योरेटिकली अगर देखें तो इम्पॉसिबल सा लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो अगर ये बेंजाइन की ये स्ट्रक्चर सही नहीं है तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर सही हो सकती है? तो बेंजाइन की एक स्ट्रक्चर तो मैं बता चुका हूँ। दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हो सकती है बेंजाइन की, जिसको कुछ साइंटिस्ट अप्रूव करते हैं, वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ये कहें कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाए और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाए और ये डाई रेडिकल बन जाए। डाई रेडिकल यानी कि दो अलग अलग कार्बन एटम्स पर रेडिकल्स दिखाई दें। रेडिकल क्या होता है? ऐसा एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर डाई रेडिकल बन गया है। तो बेंजाइन की डाई रेडिकल स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जिसको आप कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ये आपका बेंजीन है। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं, अब ये दो इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉन्ड बना लें तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में एक एक रह जाए तो डायरेडिकल बन जाएगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज हो कि किसी एक कार्बन एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन चले जाएं एक ऑर्बिटल में और दूसरे का एक ऑर्बिट और दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल खाली रह जाए, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इस केस में ये क्या हो जाएगा? दिस इज डाईपोलर आयन। ये डाईपोलर आयन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? डाईपोलर आयन। सो ओवरऑल देखें तो ये तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट की। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इसके हो सकते हैं, तीन पॉसिबल वेज हो सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को लिखने के, और बेंजाइन के लिए मैंने दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स लिखी ही थी। अब सवाल आता है कि कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा लॉजिकली सही है। तो अगर आप बात करें डाई रेडिकल की, तो बेंजाइन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डाई रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि शो नहीं करता है। इसका मतलब डाईपोलर आयन या फिर बेंजाइन, ये कन्फ्यूज़न है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बेंजाइन है और कुछ लोगों का मानना है डाईपोलर आयन है। तो अगर आप देखें, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड ऑथर्स विच आर बीइंग स्टडीड थ्रू आउट वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में कुछ ऑथर्स की बुक पढ़ी जाती हैं, वो कहते हैं कि डाईपोलर आयन जो है वो ज़्यादा अच्छे से बेंजाइन की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो देखिए, मैंने भी बेंजाइन की बात करें तो हम क्या कर रहे थे साहब, बेंजाइन बनने के बाद इसको NH2 माइनस अटैक करता है बेंजाइन फॉर्मेशन के बाद। तो बेंजाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो बेंजाइन की अगर ये स्ट्रक्चर माने तो इसके पास ये ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अटैक कर सकता है, तो ईजिली अटैक हो जाएगा। तो डाई रेडिकल से इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए डाईपोलर आयन से इसकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए डाईपोलर आयन के फेवर में बहुत सारे लोग हैं। बट सिमिलरली बहुत सारे ऑथर्स का यह मानना है कि बेंजाइन भी पॉसिबल है, क्योंकि बेंजाइन में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, NH2 वहाँ भी जाकर अटैक कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। सो एक डिबेटेबल इशू है, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आप बेंजाइन की बात ही मत करो, ना तो आप बेंजाइन कहो ना ही डाईपोलर आयन कहो, तो क्या कहें फिर? इसलिए इसको कुछ लोग बोलते हैं 1,2-डिहाइड्रो बेंजीन। 1,2-डिहाइड्रो बेंजीन, इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ये आपका बेंजीन था। बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं हर
कार्बन के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हटा दिया। तो जब ये हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई जिसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ऑर्बिटल यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या पॉसिबल अरेंजमेंट है, डाइपोलर आयन है या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डायरेडिकल, उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से, इसलिए 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन। तो ये आपके लिए एक नया नाम हो सकता है और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दे दी है। तो बेंजाइन के लिए हम एक दूसरा भी नेम यूज कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन, एंड दैट नेम सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट अंटिल हम ये स्टैब्लिश ना कर दें कि बेंजाइन एग्जिस्ट करता है और बेंजाइन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो ये चीजें सेफर साइड में अगर हम जाएं तो हमारे लिए 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन कहना ज़्यादा सही है। इसलिए बहुत सारे ऑथर्स वर्ल्ड वाइड इस पर्टिकुलर नेम को भी यूज़ करते हैं। बट क्योंकि बेंजाइन भी काफ़ी सारे ऑथर्स यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स में बेंजाइन ही लिखा होता है और हमने नेम भी बेंजाइन मैकेनिज्म ही कहा है। सो दैट इज वन स्पेसिफिक एस्पेक्ट। ओके, नाउ अभी मैं आपसे एक कुछ और छोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए बेंजाइन कब बनेगा, तो मैंने एक केस तो ये कहा कि जब एराइल हैलाइड में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ना हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, तब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी बनेगी। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पर बेंजाइन बन सकता है, वो क्या है देखिए आप। यहाँ पर अगर आप कहें ऐसा कुछ कंपाउंड हो तो देखिए बड़ी आसानी से ये बेंजाइन फॉर्म कर लेगा। कैसे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो और ये निकल कर बाहर आ जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में भी बेंजाइन बन सकता है, राइट। सो ऑब्वियसली मैं बेंजाइन ही शो कर रहा हूँ अभी, बाकी मैंने आपको जो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब लिखी दी हैं। CO2 प्लस N2। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सपोज आप कहें कि ये आपका यहाँ पर ब्रोमीन लें और F लें और इसके साथ लिथियम एंड मरकरी ले लें। तो लिथियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज है ना। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर भी बेंजाइन बन जाए। एक और पॉसिबिलिटी बनती है अगर इसी के साथ आप मैग्नीशियम ले लें, लिथियम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मैग्नीशियम भी कर सकता है। तो एक और पॉसिबिलिटी यहाँ भी बनती है कि ये भी यहाँ पर एक बेंजाइन फॉर्म कर ले। तो चलिए मैं इस बार ओके, जिस तरीके से मैंने बॉन्ड पैटर्न रखा था वही बॉन्ड पैटर्न रख लेते हैं, दैट विल बी बेटर। हाँ जी, तो क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर भी एक बेंजाइन फॉर्म कर सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेंजाइन फॉर्मेशन की। एक और पॉसिबिलिटी है जो, चलिए जितना पता चल जाए उतना अच्छा है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़ेगा। नाइट्रोजन और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड ले लूँ, राइट। इसका अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए किसके साथ, आप ले सकते हैं लेड टेट्रा एसीटेट, राइट। और इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ऑक्सीडेशन कराने पर क्या पॉसिबल प्रोडक्ट होगा, देखते हैं। यहाँ से N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर N और ये आपका N, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पर -H2 कह सकते हैं, H2 रिमूव हुआ तो ये पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी बनेगी। और यहाँ से फिर देखिए ये ईजिली रिमूव हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बेंजाइन मिलना चाहिए। प्लस एक देखिए यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, एक और बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और एक यहाँ पर एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, तो एक और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, सो 2 and 2। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड बेंजाइन्स। तो यहाँ पर आपको बेंजाइन की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। एक छोटा सा एस्पेक्ट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बेंजाइन मैकेनिज्म की बात करूँ तो मान लीजिए आपने कहा कि ये आपका हेलोजन एटम है, इस पोजीशन पर हेलोजन एटम है, इसको मैंने कह दिया है पोजीशन नंबर 1 और चलिए यहाँ डबल बॉन्ड है।
तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आ सकता है, बेंजाइन कहाँ बनेगा, तो जो आपने दो स्टेप पहले दो स्टेप यूज़ करने के बाद आपने बेंजाइन ऐसे बनाया होगा, सो दैट इज़ द बेंजाइन। भाई ये जो नंबर 1 था इसके पड़ोस वाले नंबर 2 पर यहीं पे बनेगा, या फिर इधर बन सकता है, या फिर आप ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई ये जो आपका ब्रोमीन एटम था उसके एडजेसेंट, मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसके एडजेसेंट कार्बन, यानी कि यहाँ पर भी आप बेंजाइन शो कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ये देनी पड़ेगी मुझे, राइट, सो समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट स्टेप में NH2 अटैक करता है, कौन अटैक करता है, NH2, यहाँ पर NH2 ने अटैक किया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ अटैक करे, या फिर ये भी तो हो सकता है वो यहाँ अटैक करे। तो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इन दोनों ही कार्बन पर इक्वल पॉसिबिलिटी बनती है, इसका मतलब दो पॉसिबल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे इस केस में। अगर आप देखें तो ब्रोमीन वाले कार्बन पर ही NH2 आए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ब्रोमीन के पड़ोस वाले कार्बन पर NH2 आ जाए, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बेंजाइन मैकेनिज्म आप ऑब्जर्व करेंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में तो एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि दोनों ही सेम है, उनकी पोजीशन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन है इस रिंग में, तब आपके पास दो डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, राइट। एक इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये आपने लिखा है यहाँ पर OCH3, यहाँ पर ब्रोमीन, और ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन। अब अगर देखिए इसके इससे अटैच्ड कार्बन, इसको मैं अल्फा कहूँ तो ये बीटा है, और ये बीटा, दो बीटा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हाइड्रोजन यहीं से रिमूव होगा, तो बेंजाइन इसी साइड में बनेगा। तो अगर यहाँ पर बेंजाइन बने दो स्टेप्स के बाद, दो स्टेप्स आप जो मैंने फर्स्ट दो स्टेप लिखे थे, तो बेंजाइन कहाँ बनेगा साहब, बेंजाइन बनेगा यहाँ पर इस पोजीशन पर, OCH3 यहाँ है ये। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं NH2 लेकर आऊँ तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। NH2 लाएँ एक स्टेप में, और इसके बाद दूसरे स्टेप में फिर से अमोनिया ले आएँ, राइट। सो दिस इज योर H एंड NH3। सो फर्स्ट क्या थर्ड स्टेप कहना चाहिए, और ये आपके फोर्थ स्टेप में। तो अब NH2 या तो यहाँ पर आए या फिर यहाँ पर आए। तो बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि NH2 कहाँ आता है, ये जो आपको मिथॉक्सी ग्रुप दिखाई दे रहा है इसके थर्ड पोजीशन पर, यानी NH2 यहाँ पर दिखाई देता है, NH2 इस पोजीशन पर आपको दिखाई देगा, राइट। राइट, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने OH3 जहाँ था, अगर यहाँ पर आप देखें तो इस पोजीशन पर NH2 नहीं आता है, क्योंकि बेंजाइन में मैंने कहा था दोनों पॉसिबल पोजीशंस पर NH2 आ सकता है, बट यहाँ पर इसी पोजीशन पर NH2 पाया जाता है, और इसको आप बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन, सिने सब्स्टिट्यूशन। नाउ डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीज़न व्हाई दिस हैपेंस। हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए क्वेश्चन छोड़ कर जाऊँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप मैसेज करके आप मुझसे इसका आंसर पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ देता हूँ सो दैट जो लोग सही में इंटरेस्ट लेकर वीडियोस देख रहे हैं वो कम से कम मेरे कांटेक्ट में आ जाएं और मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8130484504। वैसे तो आप अगर मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, अबाउट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और वॉइस नंबर दोनों मिल जाएंगे। मेरी ईमेल आईडी भी शायद मिल जाएगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सारी डिटेल्स, मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट जो लोग नए लोग हैं, जो मेरे वीडियोज़ रेगुलरली नहीं देख रहे हैं और अचानक से मेरी ये वीडियो देखें, उनके लिए मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास कभी फ्री टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर कर ही दूंगा। और ये क्वेश्चन मैं इसीलिए आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि जिन भी लोगों को कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं।
सो आई होप कि ये डेफिनेटली बेंजाइन मैकेनिज्म आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज सच अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं गिवन है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बेंजाइन मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, SN2AR मैकेनिज्म में दिया हुआ है और उसका नाम भी शायद SN2AR नहीं लिखा है। तो आप चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी को, बट उसमें वो SN2AR रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और वो क्या है उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट इज नथिंग बट SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो 3 पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकती हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। 2 मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड मैकेनिज्म भी डिस्कस करूँगा, और उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो एराइल हैलाइड्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और उनकी प्रिपरेशन मेथड भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको अगर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है तो आपको मैकेनिज्म वाला एस्पेक्ट पहले डिस्कस करना चाहिए था, इसलिए मैंने मैकेनिज्म में प्रॉपर्टीज़ के साथ भी डिस्कस कर सकता था। बट मुझे लगा कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ भी लेंगे, मैकेनिज्म आपको आती है, तो आप बड़े आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। वैसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, अगर आप यहाँ देखें SN2AR मैकेनिज्म जब होती है तो जो आपके एल्डिल हैलाइड्स हैं उनका जो ऑर्डर आता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वो कुछ इस तरह का होता है। फ्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। अगर हम बात करें बेंजाइन मैकेनिज्म की, जिसको मैंने आपसे कहा कि बेंजाइन कहना टेक्निकली ज़्यादा सही नहीं है, मैं इसको बेंजाइन को थोड़ा सा सुंदर से लिख देता हूँ, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाएँ तो इस केस में जो ऑर्डर आता है वो लगभग उल्टा आता है। फ्लोरीन वीकेस्ट हो जाता है, फ्लोरीन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होता है, क्लोरीन के केस में ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। तो आप इसको ऐसे याद रख लें कि ये जो ऑर्डर था इस ऑर्डर का उल्टा कर देंगे तो बेंजाइन मैकेनिज्म का ऑर्डर आ जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला ऑर्डर से चेंज हो जाता है और फाइनली ये ऑर्डर ये आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज मोस्ट रिएक्टिव, फास्टेस्ट रिएक्शन ब्रोमाइड एराइल ब्रोमाइड के केस में होगा, उसके बाद आयोडाइड्स, उसके बाद क्लोराइड और उसके बाद फ्लोराइड। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। आपको ये बताना है कि ये ऑर्डर क्यों ऐसा रहता है, व्हाई। जितना मैंने आज पढ़ा है उसी में कहीं ना कहीं इसका आंसर भी छुपा हुआ है। आप ट्राई कीजिएगा, पता करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक से पढ़े, ठीक से मैकेनिज्म को समझिएगा, ध्यान से बार बार देखिएगा, कहीं ना कहीं उसको मैंने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है बट उसको अगर आप समझेंगे मैकेनिज्म को तो आपको इसका आंसर शायद मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। डेफिनेटली आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है और अच्छी सी इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट भी हमने बनाया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और अनयूजुअल सा कुछ अच्छी सी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग योर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।